ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، پشتون روایات میں خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا نہایت ہی ظالمانہ فعل اور معیوب سمجھا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں خیبر پختونخوا میں سوابی انٹرچینج پہ اے ٹی سی کے جج آفتاب آفریدی سمیت ان کے اہلیہ اور 2 بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست ہے اور سیاست مسلسل اپنا رنگ بدلتی ہے۔ کچھ دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں، جس کی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مسلسل اس کی تردید کرتی رہی ہیں، لیکن بالآخر اس کا اختتام تقسیم پہ ہوا۔ میاں افتخار حسین نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے، وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے۔ اس پہ بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں ڈی پی او سوابی محمد شعیب صاحب۔ محمد شعیب صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ تھینک یو۔ شعیب صاحب، یہ جو جج آفتاب آفریدی کا جو قتل کا واقعہ ہوا ہے 1 ہفتہ پہلے سوابی انٹرچینج پہ، یہ تفتیش کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ کہاں تک پہنچی؟ ہاں جی، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو تھے ٹوٹل انہوں نے 10 بندے انہوں نے نامینیٹ کیے تھے، جس میں سے 6 نون تھے اور 4 ان نون تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو انہوں نے نامینیٹ کیا اس میں تھے، لیکن جو پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن آگے بڑھائی وہ ٹیکنیکلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے، او ٹی پیز کو اور یہ ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو آگے بڑھائی، تو اس کے اندر پولیس نے ابھی تک 3 جو مین اکیوزڈ ہیں، ہاں جو ہیں ان کو پولیس نے اریسٹ کر لیا۔ اس میں سے جو ایک ایکیوزڈ ہے وہ کل اریسٹ ہوا ہے، اور 2 پہلے میں بتا چکا ہوں۔ ایک اس میں داؤد تھا، ایک عزیز تھا، وہ پہلے اریسٹ ہو چکے تھے۔ ہاں اور جو یہ تیسرا ہے جمال جو بلال افریدی، اس کا نام ہے، کل اریسٹ ہوا۔ تو اس کو ہم نے ان کو عدالت میں پیش کیا اور اے ٹی سی کورٹ مردان میں۔ ٹھیک ہے۔ 3 بندے اریسٹ ہو چکے ہیں اس کے اندر۔ مزید بندے جو تھے، جتنے جو اس کے پلانر تھے، جو اس کے ایگزیکیوشنر تھے اور جو شوٹرز ہیں، وہ جتنے کمپلیٹ ہو گئے وہ دے آل ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ، اور پولیس نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ لیکن اس موقع پہ ہم آپ کو مزید ان کے بارے میں نہیں بتا سکتے، ریزن بینگ کہ کیس ان پروسیس، اور پولیس ابھی تک کام کر رہی ہے، ہماری پشاور میں بھی کام کر رہی ہے، اسلام آباد میں بھی کام کر رہی ہے، اور مردان ڈسٹرکٹ میں بھی کام کر رہی ہے، تو مختلف ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے۔ تو مزید اس میں اریسٹ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ول کیپ یو اپڈیٹڈ۔ اب پھر لیٹسٹ اس میں جو ہے وہ یہی ہے، جو ہم نے کل جو لڑکا ہے، ایک لڑکا اس میں مزید ہم نے اریسٹ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں اب جو بار ایسوسیشن کے جو صدر ہیں لطیف آفریدی صاحب، ان کا نام بھی تھا، اس حوالے سے کیا کیا آپ لوگوں نے؟ کیا وہ شامل تفتیش ہیں؟ ہاں، اس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی بالکل، انہوں نے اپنی پشاور ہائی کورٹ سے بیل کروائی، ہاں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئیں گے، تشریف لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو مزید جو ہے ہم آگے بڑھائیں گے۔ اب ہماری اپنی تفتیش کے اندر جو کچھ بھی آئے گا ان سے ریلیٹڈ انشاءاللہ وہ ہم جو پولیس فائل ہے ہم اس کا حصہ بنائیں گے اور ہم عدالت کے اندر دیں گے۔ مزید جب وہ آئیں گے، ہمارے پاس آئیں گے، اور ہم ان کو سنیں گے، ان سے کراس کوسچننگ ہوگی، اور پھر ان سے اسٹیٹمنٹ لی جائے گی، اس کو فائل کا حصہ بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے دیکھا جی آپ کوئی بات کر رہے تھے؟ جی بس یہی ہے، اس میں اگر مزید کچھ چیز سامنے آئے گی ان سے ریلیٹڈ یا ان کے بارے میں جو کچھ لوگ ہم فائل کا حصہ بنائیں گے تو عدالت میں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایک جو معاملہ ہوا اس میں ایک تو 2 اینگل دیکھے کہ ذاتی دشمنی، ایک وہ جو انہوں نے کچھ ایسے کیسز کیے ہوں کہ اس بنا پہ میں بھی ان کو کیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی عدالت کے ججز ہوتے ہیں، بہت سی تنظیمیں ان کے پیچھے لگی ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا ان دونوں اینگل کو مد نظر رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی میڈم، بالکل، ہم نے ان کے جو سوات میں جو کیسز کر رہے تھے یا جو جتنے بھی انہوں نے مزید پاس میں کیسز کیا، ہم نے اس اینگل کو بھی دیکھا، ہم نے جو ٹیررزم کا اینگل تھا اور پرسپیکٹو تھا اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھا۔ ہر چیز کنفرم کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچی ہے، پولیس اپنا جو کوآپریٹو اور سرکمسٹینشیل ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد، اور جو ایک ہسٹری پرسنل فیملی کی جو ایک ہسٹری تھی ان کے اوپر، جو ان کی 2 فیملیز کے بیچ میں جو ہسٹری ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر اس کو جب ہم اپنے جو ایویڈنس ہے اس کے ساتھ جب ہم اس کو کولیبریٹ کرتے ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پیورلی ایک پرسنل اینیمیٹی ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں یہ بتا دوں کہ جو ان کا اپنا بیٹا ہے عبدالماجد افریدی، جو اس ایف آئی آر کا جو کمپلینٹ بھی ہے، انہوں نے بھی اپنی ایف آئی آر کے اندر یہی بولا ہے کہ یہ ہماری
उनकी अपनी मेरे ख्याल स्टेटमेंट भी है मीडिया के ऊपर, और उन्होंने अपनी उनके FIR का वेतन भी यही है कि ये हमारी जाती दुश्मनी, मतलब हमारी पर्सनैलिटी है। ठीक है। अच्छा, ये ऐसा है कि जो जजेस होते हैं उन पे हमलों के मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो इस हवाले से कोई स्पेशल मेजर जो है आपने बोल लिए हैं, या आपकी फौज इस हवाले से क्या कर रही है, क्योंकि जिम्मेदारी तो आप लोगों की बनती है ना? मैं आपको इसमें बिल्कुल बताता हूँ। देखें, इसमें एक तो दो चीज़ें, क्योंकि एक तो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो स्टेशन होते हैं ना, मतलब कि जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो उसके अंदर तो स्टेट ऑफ द आर्ट खैबर पख्तूनख्वा के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट जितनी कॉन्स्टेबलरी, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स और APC है वो वहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड होती है। दूसरी जो होती है, जब जज साहिबान की मूवमेंट होती है, तो वो जो मूवमेंट होती है, तो जज साहिबान उस मूवमेंट से पहले जितना जो हमारे कंट्रोल को पास होता है, तो उसका प्रॉपर एक स्क्वाड होता है जिसको हम इसको मोटरवे की पूरी सिक्योरिटी देते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सिक्योरिटी देते हैं मूवमेंट के वक्त करते वक्त, लेकिन उससे पहले हमें बताया जाता है, हमें उस चीज के बारे में कन्वे किया जाता है हमें, तो उसके मुताबिक हम लोग उसका सिक्योरिटी बनाते हैं और उसको हिफाजत का और इनका हर लिहाज से भरपूर तरीके से जो इनकी जो प्रोटेक्शन है, उस सेफ्टी है, उसको इंश्योर किया जाता है जज साहिबान। लेकिन देखें, जिस तरह सिक्योरिटी की आपने भी बात की है, लेकिन कोई पहला वाकया नहीं है। इस तरह के वाकयात जो है बेशुमार आपको बता भी सकते हैं, गिन के बता सकते हैं कि इस एक महीने में कितने हुए हैं पेशावर में। ये वाकयात तो होते रहते हैं। वजह क्या है कि आप इनकी जान की हिफाजत के लिए मामूर होते हैं, फिर इनको सिक्योरिटी भी इतनी सख्त इनकी होती है, इनको हाई अलर्ट सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये वाकयात नुमा होते हैं। कोताही किसकी है, गलती कहाँ पे है? मैडम हम इसको कोताही या गलती तो नहीं कहेंगे, इसको हम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कहेंगे, क्योंकि देखें इसमें जो हमारे जो दो लड़के उनकी प्रोटेक्शन के लिए थे उस टाइम गाड़ी में मौजूद थे, वो भी इंजर्ड हैं, वो भी बुलेट सर्वाइवर्स हैं। बिल्कुल, मतलब कि जो उनकी जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए थे वो भी इंजर्ड बुलेट सर्वाइवर्स हैं। मतलब कि वो इसीलिए वो उन्होंने कुछ किया है वहाँ पे, वो उन्होंने आगे से अपने रेटेलिएट किया और या जो भी वटेवर है, जो उसके अंदर वो लोग भी इंजर्ड हुए। तो हम इसमें पूरी कोशिश अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से, कि इनकी जो सिक्योरिटी है और जो सेफ्टी है उसको हम इंश्योर कर सके। बाकी इसमें ये है कि अभी तक इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी मेरा जहाँ तक पर्सनली ख्याल है कि जो मेरे नोटिस में है, ये मेरा जो है, मैं प्रीवियस ईयर से चाहता था और फिर अभी मैं स्वाबी में, उससे पहले मैं पेशावर में ही गिरा हूँ, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो स्पेसिफिकली जो रिलेटेड टू है जो जज साहिबान है वो इतना पॉपअप नहीं किया। इसमें कुछ इंसिडेंट्स हैं जो कि क्वाइट बैक जब थोड़ी मिलिटेंसी एक्टिव थी उसके अंदर, लाइक बैक इन 2014-15, तो उस टाइम मिलिटेंसी थोड़ी एक्टिव थी, तो उस टाइम इनकी जो व्हीकल थी, जो मूवमेंट थी, वहाँ पे ये टेररिज्म के ये वाले इंसिडेंट कुछ हुए थे और वो थोड़ा रिपोर्ट हुई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस ने और उसमें सब लोगों ने उसको ट्रेस भी किया था। लेकिन जो रीसेंट हिस्ट्री है, रीसेंट पास्ट है, तो हम हर लिहाज से, हर एंगल से इनको प्रोटेक्ट करने की, इनको सपोर्ट, चाहे हमारे पास जितनी भी नफरी हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी की अगर वापस नफरी कम भी हो कॉन्स्टिट्यूट, लेकिन हम उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्रोटेक्शन और उसकी सेफ्टी को तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है उसको बिल्कुल 100% मनोवन उसको इंश्योर करती है। अभी भी इस टाइम मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि हमारा जो ये सवाबी का जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर इस टाइम मौजूदा स्ट्रेंथ है हमारा अराउंड हमारा 85 कॉन्स्टिबलरी हमारी वहाँ पे डिप्लॉयड है। सब इंस्पेक्टर बैंक के जो लोग होते हैं वो उसके इंचार्ज होते हैं। इसी तरह से 4 का जुडिशल कॉम्प्लेक्स था जो प्रीवियसली वहाँ पे था, तब वो इसी तरह कंटिन्यू है, उसमें भी अराउंड 80 इंडिविजुअल जो है वो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे होते हैं, जो 24/7 उनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि हमें इसमें इनकी सिक्योरिटी के अंदर कॉम्प्लेक्स की दूसरी सिक्योरिटी करें, हमें फ्रंटियर कॉन्स्टिबलरी भी असिस्ट करती है। आर्मी की जो बैकअप जो क्लियर टीम्स होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो यूनिट डिप्लॉयड होती है, जो क्लियर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स होता है आर्मी का, एलीट का, हमारी पुलिस का, वो हमेशा 24/7 वो हमेशा वहाँ पे मौजूद होता है और सिक्योरिटी हम लोग इंशाल्लाह इंश्योर कर रहे हैं। हम अभी तक इंश्योर करते हैं, हम आगे भी करेंगे और इसी तरह प्रोफेशनली करेंगे। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का, मोटर के पहुंचा रहे थे, पर्सनल दुश्मनी थी, उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हुई, जब वो वहाँ से निकले तो उनकी मूवमेंट की जो मूवमेंट थी वो आगे पास आउट की गई और उसके अंदर ये इसका हुआ है बस। लेकिन इसमें मैं ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देता हूँ, लेकिन इसमें अगर आप ये देखें कि विद इन 3 डेज जो स्वाबी पुलिस है उसने बहुत प्रोफेशनली
इसको जो केस को ना सिर्फ ट्रेस आउट किया है, इसके जो एक्यूज थे, जो कल्प्रेट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसने अभी तक जो 3 मेन एक्यूज हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया है, और जिसमें एक गाड़ी है वो भी रिकवर्ड है, जो विड्स गाड़ी है वो भी रिकवर्ड है। और इंशाल्लाह आज मैंने आपको ये अपडेट की है कि इसका एक मजीद रेस्ट होकर मैं इंशाल्लाह कि सून, वेरी सून, ये जितने भी एक्यूज हैं ये दे ऑल विल बी अरेस्टेड इंशाल्लाह। एंड जो जस्टिस है, जो इंसाफ है, बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, मासूम की जान गई है, खवातीन शहीद हुई हैं, 10 साहब शहीद है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन पुलिस ने इसको ट्रेस आउट किया है, अप्रीहेंड किया है, और अल्लाह का शुक्र है जो कंप्लेनेंट्स हैं वो हमारी इन्वेस्टिगेशन से वो भी सेटिस्फाइड। ठीक है शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं तारिक वहीद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। तारिक वहीद साहब, आपको केपी टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, ये जो अभी कुछ दिन पहले वाकया हुआ है सवाबी इंटरचेंज पे, जो उसकी डेथ हुई है एक जज की, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आफ्ताब आफरीदी साहब का जो कत्ल हुआ है, उनकी शहादत हुई है, इसका पस मंजर और पेश मंजर थोड़ा सा बयान करेंगे आप? बिल्कुल निहायत ही अफसोसनाक वाक़या था, जिसमें अमूमन जो हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में या जो कबायली रिवाज में दुश्मनी का सिलसिला कोई नया नहीं है, लेकिन जितना भी हमने देखा है कि हमारी पख्तून रिवायात में भी है कि कुछ शदीद से शदीद दुश्मनी में भी कभी भी खवातीन और बच्चों को नहीं बनाया जाता। लेकिन अफसोसनाक वाक़या है, बदकिस्मती से इस केस में इस तरह देखने में आया है। एक सिटिंग जज जो सवात इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज थे, आफ्ताब आफरीदी मरहूम, उसको और उसकी फैमिली को निशाना बनाया गया है। एक शीरखार बच्ची को और एक खातून के पेट में मौजूद, जब अभी उसकी पैदाइश भी नहीं हुई थी, उसको भी निशाना बनाया गया। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। लेकिन इसका जो दूसरा बड़ा पहलू है कि जो मखसूस जज है उसके बेटे ने दावेदारी की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सदर लतीफ अफरीदी, उसके बेटे दानिश अफरीदी, के दीगर साथियों पर भी दावेदारी की है। तो उस वजह से ये केस काफी कुंजलक बन गया है। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से बयान जारी किया गया था किसी की तरफ से, उसमें लतीफ अफरीदी को कोर्ट से बताया गया था कि उसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उन्होंने जब ये वाक़या पेश आया था उन्होंने उसकी फौरी तौर पर मजम्मत की, हमें से फौरी कार्रवाई की दरखास्त की थी। लेकिन जब उसकी लवाकिन ने लतीफ अफरीदी पर दावा कर दिया, उस पर दावेदारी कर दी, एफआईआर में उसका नाम दर्ज किया गया, तो उसके बाद से कल ही लतीफ अफरीदी ने या अदालत से जमानत गिरफ्तारी हासिल कर ली है। लेकिन उसका जो बेटा है दानिश अफरीदी और 2 और मुल्जिमान है जिनको बताया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही जो इस वारदात में जो गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी उनमें उसका सुराग भी लगाकर तहसील में दिया गया है। तो पुलिस अभी दावा कर रही है कि जो मरकजी मुल्जिम है 2 उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और अभी मजीद इसमें जो शामिल तफ्तीश होंगे उन तक भी रसाई मिल जाएगी। लेकिन ताहल अभी तक जो तफ्तीशी टीम है, जितनी हमारी पुलिस तफ्तीशी टीम से बात हुई, तो उनके मुताबिक अभी तक वो इस वारदात में लतीफ अफरीदी और उसके खानदान की जो अमल दखल है उसको अभी तक तलाश नहीं कर सके हैं। तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी तक वो किसी इस केस के सिरे पर नहीं पहुंचे हैं। जैसे जहाँ तक आपने इसके पस मंजर की बात की, अफरीदी का खानदान जो है, जो पेशावर से मुल्हिका जिला खैबर है, कबायली जिला, यहाँ पर इनके खानदान की दुश्मनियां माजी में चली आ रही थी। माजी में इनके खानदान की दुश्मनी जो एमपी से ताल्लुक रखते थे, एक सरकर्दा रहनुमा थे, उनका सिर कत्ल हुआ था और उसकी दावेदारी भी लतीफ अफरीदी खानदान पर हुई थी। लेकिन बादगा इन दोनों तरीके में सुलह हो गई थी, और उसके बाद शेर अफरीदी नाम का एक बंदा था जो लतीफ अफरीदी खानदान से ताल्लुक रखता था, बल्कि
लतीफ अफरीदी का कजन लगता था, उसको कुछ अर्से कबल नामालूम अफराद ने पेशावर के नवाही इलाके पजेगी में फायरिंग करके कत्ल किया था। तो ये मुख्तलिफ सिलसिला चला रहा है। एक खानदान के साथ तो इनकी सुलह हो गई भी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन जो दूसरा खानदान था जिसमें लतीफ अफरीदी का जो कजन है वो कत्ल हुआ था, वो दुश्मनी अपनी जगह पर मौजूद थी। अब उस दुश्मनी का और इस वाक़े का आपस में क्या कनेक्शन है, आया इसके ताने बाने एक दूसरे से मिलते हैं, वाकई लतीफ अफरीदी का खानदान इस वारदात में मुलविस है, इस हवाले से तो फिर पुलिस तफ्तीश में ही कुछ बताया जा सकेगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि देखिए पहला वाकया तो नहीं है, इस तरह के वाकयात होते रहे हैं, इसमें पुलिस का किरदार क्या रहा है? आप मिसाली पुलिस का किरदार में पूछूंगी जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो दावा किया जाता है। देखिए, इसमें एक तो बड़ा अफसोस वाकया था, लेकिन इसमें दिलचस्प पहलू ये सामने आया था कि जब ये वारदात हुई उससे मोटरवे इंटरचेंज पे, मतलब ये इस तरह से मोटरवे पुलिस की हदूद में ये वारदात हुई। हाँ। तो रात गए तक ये जो है तनाजा चल रहा था कि जो लोकल पुलिस सवारी पुलिस है वो मोटरवे पुलिस से इसकी रिपोर्ट मांग रही थी, और मोटरवे पुलिस सवारी पुलिस को इंटीमेट कर रही थी कि आप इस केस को आगे बढ़ाए और इसका मुरादा मुरतब करें उस वजह से। तो रात गए तक मोटरवे पुलिस और सवारी पुलिस के दरमियान हदूद के तनाजे पर ये इशू चलता रहा। यही वजह थी कि FIR और इसके इंदराज में भी काफी वक्त लगा। तो मैं यही कहता हूँ कि जो अमूमन हमारे यहाँ रिवायत है, पुलिस कोशिश करती है कि मतलब जो इस तरह की बड़ी वारदात हो उसमें अपने खुद को इन्वॉल्व ना करे। तो जब उनको पता चले कि मोटरवे की हदूद में ये वाक़या हुआ है, तो मोटरवे वो इंतजार कर रहे थे, उनको ऑफिसर को कॉल कर रहे थे कि आप इस केस को रास्ता तैयार करके पुलिस को दे, जबकि वो यही कह रहे थे कि पुलिस को। तो ये मतलब पुलिस साथ में तो कोशिश कर रही थी से खुद को निकाल ले और मोटरवे के सर पे डाल ले, लेकिन मोटरवे पुलिस ने इसको सवारी पुलिस के सर पे डाल दिया और मजबूरन सवारी पुलिस ने इसको परसूख किया। जहाँ तक तफ्तीश का ताल्लुक है, तो मैं कह सकता हूँ कि काफी तेजी दिखाई है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मर्डर था, उसकी फैमिली को निशाना बनाया गया था। फिर उसमें जो अपोनेंट है, जो लवाइसी में, उन्होंने एक आला सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट बार के खानदान सदर के खानदान पर इल्जाम लगाया था। तो लाजमी बात है, पुलिस को तो मुतहरिक होना ही था। IG ने खुद इसी रात अजय वकू का दौरा किया, उधर पुलिस को दौड़ाया। तो पुलिस पर प्रेशर क्योंकि काफी ज्यादा था, हाई प्रोफाइल केस था, तो पुलिस ने काफी सुंदी दिखाई, तेजी दिखाई। अभी जो बंदे अरेस्ट हुए हैं, पुलिस दावा कर रही है कि भाई हमने इस केस के जो मरकजी मुलजिम है, जो अटैकर थे, उनको अरेस्ट किया है और गाड़ियां भी बरामद कर ली है। अब ये बाद में पता चलेगा कि आया ये टारगेट किलर है, जो उधर की कातिल होते हैं, जो पैसे लेकर कत्ल करते हैं, या असल एक्यूज है, जो गाड़ियां है वाकई वही है जो इस्तेमाल हुई थी। ये तो मेरे ख्याल में बाद में पता चलेगा, लेकिन फौरी तौर पर पुलिस ने ये दावा किया है कि इस केस के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा वही साहब, ये हम देखते हैं कि दहशतगर्दी अदालत के जो जजेस होते हैं वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, तो उनके पीछे तमाम तंजीमें लगी हुई होती हैं। तो आप क्या समझते हैं, इनकी जो स्क्वाड है, इनका तहफ़्फ़ुज़ है, इसकी कोई क्वालिटी भी है? देखिए, जो आप बात कर रही है कि इंसदाद दहशतगर्दी के जजेस जो है, जितने भी लोग सरकारी एहलकार इस सिस्टम में इन्वॉल्व है, लाजमी बात है कि जो हालात हैं, बिल्कुल अगर हम बात करें सवाब के हवाले से, तो काफी अरसे तक वो दहशतगर्दी का निशाना आ रहा है। वहाँ पर माजी में जजेस को भी निशाना बनाया गया है, अदालतों को निशाना बनाया गया, हम हमले हुए हैं। तो इस इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता कि इसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट भी हो, क्योंकि जब ये वाकया रुनुमा हुआ तो फौरी तौर पर क्योंकि एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जज और वो भी सवात में तैनात, तो लाजी तौर पर बेहतर लोगों का, हमारे साथियों का, जुडिशरी का, जितने भी लोग थे, सबकों का जो जहन है वो दहशतगर्दी की तरफ चलेंगे कि हो सकता है मुमकिन तौर पर उनको दहशतगर्दों ने निशाना बनाया हो। लेकिन बाद में जब उसके लवाइकीन ने दावेदारी कर दिया मुखालिफिन पर, तो फिर ये दहशतगर्दी का आंसर था वो कम पड़ गया, क्योंकि लाजमी बात है कि जिस बंदे पर हमला होता है, जो उसके जो मकसूद जज है, उसके बेटे ने खुद को इन्हीं शाहिद जाहिर किया है, क्योंकि उसने बाकायदा बंदों को देखा है, फला बंदे थे, उनके पास असलहा था, इन गाड़ियों में थे, उनने हमला किया। तो उसके बाद जो दहशतगर्दी का एलिमेंट है, अगर उसके लड़की खुद क्लेम करते हैं जिसमें दहशतगर्दी नहीं बल्कि उनकी पुरानी दुश्मनी का आंसर जो है शामिल है, तो मेरे ख्याल में फिर तो हम इस
पहलू पर बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये दावा न करते, नामालूम होते, तो फिर बराह रास्त जो है जहन उसी तरफ जाता कि इनको दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है। अच्छा, ये बार कौंसिल के सदर का नाम जो इसमें आया, आपने भी जिक्र भी किया, इस पे आप क्या समझते हैं कि जो वकला बरादरी है उनका रद्द-ए-अमल क्या है इस हवाले से? देखिए, मैं जब ये वाक़या पेश हुआ तो फौरी तौर पर तो वकला ने, क्योंकि जज थे और फिर उसका बेटा जो है वो खुद भी वकील है, जो मकतूल जज है उसका बेटा भी खुद वकील है, तो वकला ने अगले दिन अदालतों का बाइकाट किया था और उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट इस वारदात पर रिकॉर्ड किया। लेकिन उस तरह क्योंकि जब बाद में ये इस वारदात का जो पहलू है वो तब्दील हो गया और लतीफ अफरीदी जो एसोसिएशन पाकिस्तान बार एसोसिएशन के सदर, उस पर दावेदारी कर दी गई, तो उसके बाद से वो कला की तरफ से जो शिद्दत का इजहार किया जा रहा था उसके एहतजाज में वो कम पड़ गया। उन्होंने अलामती तौर पर तो इस वारदात पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर लिया, अदालतों से बाइकाट कर लिया, लेकिन उस तरह की शिद्दत देखने में नहीं आ रही है वकला की तरफ से, जो माजी में होता रहा है कि जब इवन किसी वकील पे हमला भी हो जाता, वो जख्मी भी हो जाते या कोई भी मिसहैप हो जाता था, तो वकला जिस शिद्दत से उस पर एहतजाज करते थे, बाइकाट करते थे, वो देखने में नहीं आ रहा है। वजह यही है मेरे ख्याल में, क्योंकि दोनों जो फरीकैन है वो दोनों का जो ताल्लुक है वो बार से ही है। जो मकसूद है जज, वो भी इस तरह से बार से ही बिलवासे तौर पर ताल्लुक रखते हैं और इसी तरह जुडिशरी से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह उसका बेटा भी वकील है, जो मुहाजिम पर दावा किया गया है वो बार के सदर है, उसका बेटा जिस पर दावा किया गया वो भी वकील है। तो एक तरह से वकला के अंदर ये फरीकैन मौजूद है। तो यही वजह है कि वकला तहरीक या वकला की जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से उस तरह शिद्दत। अच्छा, हम ये वकला की बात करें, लेकिन सिविल सोसाइटी और जो सियासी रहनुमा है उनका क्या रद्द-ए-अमल है इस हवाले से? देखिए, ये जब ये वारदात हुई तो फौरी तौर पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो तेजी से रिस्पॉन्स आया, जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान है उन्होंने इसकी मजम्मत की और साथ ही इस हवाले से मुतल्लिक़ इदारों को इक़दामात भी जारी किए थे और वज़ीर आला ने भी इसका नोटिस दिया था, इस वाक़े की मजम्मत की थी, लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया था। साथ ही सिविल सोसाइटी की तरफ से भी इसमें उन्होंने अपनी ताज़ियत का इजहार किया था, लवाहिकीन के साथ यकजहती का इजहार किया था। तो मसला यही है कि जब इसका, जिस तरह मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसकी पहलू सामने आया कि जो लवाहिकीन है वो है जो विक्टिम्स हैं और जो मुल्ज़िमान है, उन दोनों का ताल्लुक एक तरह से वकला बिरादरी या जुडिशरी से है। तो उसके बाद से सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट कॉरिडोर में भी इस वाक़े पर रिस्पांस या रद्द-ए-अमल का जो शिद्दत थी उसकी वो कम पड़ गई। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ, लेते हैं छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। नाज़रीन, इस वक्त हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा बहरामंद तंगी साहब। तंगी साहब, आपको केपी टाइम में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर, ये जो पीपल्स पार्टी की वलीबाग में एनपी से मुलाकात अभी 2 दिन पहले हुई है, मुलाकात भी हुई है इन लोगों की, कुछ जो जिससे एनपी ने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया और जिस तरह पीपल्स पार्टी का कहना था कि हमें शोकाज नोटिस देने का मतलब ये है कि हमें ज़ैली तंजीम समझा जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी तो बहुत मुतहरिक है, तो पीपल्स पार्टी की जो कह रहे हैं कि छतरी तले नई जो एक सफबंदी की जा सकती है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबबंदी का ताल्लुक है और शोकाज नोटिस का ताल्लुक है और हुकूमत के सेनेटर्स का ताल्लुक है, ये 3 इश्यूज हैं। और मेरे ख्याल में शोकाज नोटिस से पहले अगर मरियम अपने आप को पॉलिटिकल वर्कर समझती है, नो डाउट कि उसकी पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन ये है कि शी इज द डॉटर ऑफ नवाज शरीफ, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखती है। हमने उनका एहतराम किया है, हमेशा वो एहतराम करते हैं, इसलिए कि हम सियासी लोग हैं। और शहीद बीबी ने और शहीद भुट्टो ने हमें ये सिखाया है कि तमाम पॉलिटिकल वर्कर और लीडरशिप का भी एहतराम है। लेकिन क्या ये जो शोकाज नोटिस इशू करने वाले लोग हैं, या शाहिद खान अब्बासी या मौलाना फजल रहमान साहब,
تو کیا ہم ان کے نوکر ہیں یا ہم ذیلی تنظیم ہیں؟ یا اگر یہ غلط کرتے ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی سے مل کر اپنے سینٹرز بناتے ہیں، تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے رول پلے کرتے تو اس وقت مولانا فضل الرحمان کیوں سوئے تھے؟ یا اگر کے پی میں اس میں 4 سینیٹرز کو کی جگہ پہ 2 کو کامیاب کروایا اور 2 سینیٹر مسلم لیگ نون کے کنڈیڈیٹ کی وجہ سے ہم ہار چکے ہیں، تو اس وقت مولانا صاحب کا کردار کہاں تھا اور پی ڈی ایم کا صدارت کہاں تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہم بار بار کہتے تھے کہ جب پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم کو نام کو آپ یوز کرتے ہیں تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم سب مل کر جو بھی ایشوز ہوتے ہیں، مختلف نظریات والے لوگ ہیں، مختلف مینیفیسٹو والی پارٹیز ہیں، مختلف منشور والی پارٹیز میں شامل، لیکن کامن گول ہے وہ ہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھجوانا۔ تو اس کاز کو، اس گول کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پلیٹ فارم کو استعمال کرنا چاہیے، کمرے کے اندر بیٹھ کے ریزالو کرنا چاہیے ایشوز کو، نہ کہ میڈیا کے ذریعے عمران کے بجائے اپوزیشن پر وار کرنا اور اپوزیشن پر تنقید کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ بچکانا فعل تھا جو کہ مولانا فضل الرحمان نے اور پی ٹی آئی نون گروپ کی لیڈرشپ نے استعمال کیا۔ میں سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف مذمت کرتا ہوں ایسے کردار کا، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کاز کو بہت بڑا نقصان پہنچایا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور نون گروپ کی لیڈرشپ نے، جس کاز کے لیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قربانیاں دی ہے، اور اس ظالم حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ سر ذمہ دار تو پیپلز پارٹی کو قرار دیا جا رہا ہے اس تقسیم کا، جس طرح زرداری صاحب نے بیان دیا تھا، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا تھوڑا بہت ذمہ داری ان پہ بھی ہے جو یہ تقسیم ہوئی ہے؟ ذمہ دار تو پیپلز پارٹی بھی ہے نا، کہ نواز شریف کی واپسی کو انہوں نے دیکھیے جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم وجود میں آیا تو پی ڈی ایم میں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ان لوگوں نے اسے بائیکاٹ کیا تھا ضمنی الیکشن سے اور سینٹ کی الیکشن سے، لیکن میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام کو کنوینس کیا کہ نہیں، ہمیں ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہیے اور ہمیں سینٹ کے الیکشن میں بھی لانا چاہیے، لیکن 3 آپشنز تھے، اور ریزگنیشن بھی تھا، مارچ بھی تھا اور نو کانفیڈنس بھی تھا۔ لیکن ہم نے ہمیشہ یہ نہیں سوچا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مشورہ دے دیں، نہ کہ فیصلہ کریں، اور اسی وجہ سے ہم نے ہمیشہ پی ڈی ایم کو مضبوط دیکھنے کے لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلے کے لیے سوچا ہے، اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنے فیصلے مسلط نہ کریں، ہم کسی پارٹی کو دیوار سے نہ لگائیں، بلکہ ہم وہ رول پلے کریں جو کہ پی ڈی ایم میں تمام جماعتوں کو قابل قبول ہو۔ سر یہ پی ڈی ایم جو بنی تھی لانگ مارچ کے حوالے سے، جو سینٹر ہے وہ پنجاب بننا تھا، باقی پارٹیوں نے باقی جگہوں سے اپنا حصہ اس میں ڈالنا تھا، تو آپ لوگ جس طرح سے تقسیم ہو رہے ہیں، اور اس تقسیم سے تو حکومت خوش ہوگی، کیونکہ حکومت کو تو آپ لوگوں کا کوئی خوف نہیں ہے، ان کو تو وہ خوف جو ان کے اندر تقسیم ہو رہی ہے اس کا ہے۔ دیکھیے میری بات سنیں، حکومت اگر کو خوف ہے تو وہ عمران کے کردار کے خوف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت یہ نہیں ہے، وہ عمران کے کردار سے اور عمران کے فیصلوں سے پی ٹی آئی کو اور حکومت کو خطرہ ہے، لیکن اپوزیشن کا بھی ایک حق بنتا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے، اپنا رول پلے کرے، اور وہ بھی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان سے باہر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو پارلیمان کے اندر بھی لڑائی کریں گے اور پارلیمان سے باہر بھی لڑائی کریں گے، اس لیے کہ پارلیمان وہ فورم ہے جس میں آپ 22 کروڑ عوام کی خدمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی کی ہے، اور نواز شریف کو اور مولانا فضل الرحمان کو معافی مانگنی چاہیے، اس اپنے کردار پر قوم سے معافی مانگے، پیپلز پارٹی سے لیڈرشپ سے معافی مانگے، اور اس سے معافی مانگے کہ ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کو، جس کی بڑی قربانیاں ہیں، پیپلز پارٹی جس کی بڑی قربانیاں ہیں، ان دونوں کی بے عزتی کی ہے، اس بے عزتی پر وہ معافی مانگے، پھر آگے بات بڑھ سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔
वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं आईजी केपी के सनाउल्लाह अब्बासी साहब। सनाउल्लाह अब्बासी साहब, आपको खैबर पख्तूनख्वा टाइम में खुशामदीद कहती हूँ। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। सर, जज आफ्ताब आफरीदी का जिस तरह का ये वाकया हुआ है सवाबी इंटरचेंज पे, तफ्तीश कहाँ तक पहुंची, इस हवाले से थोड़ा हमें बताएं। हेलो सनाउल्लाह साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? इस वाकये को आप किस तरह देख रहे हैं, और दूसरा ये बताएं कि तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है। मैं सिर्फ इतना ही कंफर्म कर सकता हूँ कि 3 आदमी गिरफ्तार हुए और उस तफ्तीश चल रही है। ठीक है जी जी, फॉरेंसिक तफ्तीश चल रही है। हाँ, और इतना ही कह सकता हूँ कि ये तफ्तीश चल रही है। अच्छा सर, इसमें दो एंगल हैं। एक तो ये कि इनकी एक तो खानदानी दुश्मनी लतीफ आफरीदी साहब के हवाले से जो कहा जा रहा है, बार कौंसिल के सदर हैं। दूसरी चीज ये कि इन्होंने शायद ऐसे कुछ केसेस किए हों। क्या दोनों एंगल को आप लोगों ने सामने रखा हुआ है तफ्तीश के दौरान? मैं वैसे बताऊँ, इस पर कोई भी मैं तबसरा नहीं करूँगा। तफ्तीश चल रही है। हाँ हाँ ये सारी चीज FIR में कुछ लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया है, उनके वफा ने। हाँ हाँ तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, तफ्तीश चल रही है। हाँ। हमने एक टीम बनाई हुई है DIG की सरबराही में, SP इन्वेस्टिगेशन और DPO साहब हैं हाँ उसमें, और CTD का रैप भी है उसमें। ठीक। तो वो तफ्तीश कर रहे हैं। सर, ये जो जजिस पे हमले होते हैं, मुख्तलिफ वाकयात सामने आ रहे हो, तो इस हवाले से आपकी फोर्स क्या कर रही है? स्पेशल मेजर कुछ लिए गए हैं इस हवाले से? ये जुडिशियल प्रोटेक्शन के लिए पार सिक्योरिटी मौजूद होती है। हाँ हाँ बल्कि जज साहब के पास भी 9 हाँ, हाँ। थे, तो सवाब से ठीक है। ये किसी केस हाँ हाँ ठीक। सर, क्या वजह है कि सिक्योरिटी भी फराहम की जाती है, जिस तरह आपने कहा कि हाई अलर्ट होती है, लेकिन उसके बावजूद इनकी जानों की हिफाजत के लिए ये सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन फिर भी इस तरह के वाकयात रहनुमा होते हैं। आप खुद भी बेहतर तौर पे जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में कितने वाकयात इस तरह के हुए हैं। वजह क्या है, किसको जिम्मेदार करार देते हैं आप? देखो, मैं इस पर नहीं करूँगा। कोई बंदा गिलास आधा भरा हुआ होता है, आधा खाली होता है। हाँ हाँ तो हम तो इसको ये देख रहे हैं कि समझ लो कि 48 घंटे में पुलिस ने 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। हाँ तो ये एक आधा गिलास हम भरा हुआ देख रहे हैं, ताकि जो आप बात कर रहे हैं उसको हम देख रहे हैं कि उसको कैसे प्रिवेंशन की जा सकती है। हाँ। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से, आखिरी सवाल आपसे करूं कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए आप क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, या किस तरह की सिक्योरिटी दी जाए कि इस तरह के वाकयात फिर रहनुमा ना हो? हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, सिक्योरिटी को, हाँ हाँ पैराडाइम को, सारों को। हाँ। तो आपके साथ जो भी सिक्योरिटी पैराडाइम हम रिव्यू कर रहे हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे जरूर। ठीक है सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक।